question of a chapter fraction and decimals. Now first of all we will discuss, we had already discussed about the fraction and decimals. Fractions are number which can be represented by the form a upon b. We had done three types of the fraction, that are proper fraction, improper fraction and mixed fraction. Now these are also named in collective form PIM. Proper fraction, improper fraction and mixed fraction. In proper fraction we had done that numerator is less than denominator. If a upon b is a form of fraction, then here a is numerator and b is denominator. Now if numerator is less than denominator, like 1 upon 3 or 2 upon 3, then that case is a proper fraction. In improper fraction, reverse case happens, that numerator is greater than denominator. For example, 3 by 2, 5 by 4, 7 by 6 or 7 by 4. Anything else where numerator is greater than denominator. Now mixed fraction is like 4:1 by 2. This is a mixed fraction. So we had done all of these. Now decimal was like a number in which a point is existed. For example, 4.2, 3.5. So we had done all about these things in the introductory part. Now let us do some exercise question. We will do first question of exercise 2.1. Now solve these fractions. So we are given 2 minus 3 by 5. Now if there is not denominator, then we will simply consider it as 1, like 2 upon 1. Now we will solve it. Taking LCM, 5 2s are 10, minus 1 into 3 is 3. Just cross multiply these. 2 into 5, 10, 1 into 3 is 3. Here sign in between the two numbers is negative, so we will take negative. Now 1 into 5 will be 5. So 10 minus 3, 7. 7 by 5. So our question was in fractions, so we got the answer. 7 by 5. Now next is 4:7 by 8. 4 plus 7 by 8. Now in a similar criteria, we will write it as 4 by 1 plus 7 by 8. Now solve it taking LCM. 4 into 8, 32. Now here in the denominator both of the numbers are different from each other, so we will take LCM. 4 into 8 is 32 plus 1 into 7 is 7. Upon 1 into 8 is 8. Now 32 plus 7 will be 39 upon 8. So this is our answer. Now next is, again denominators are different, so we will take LCM. For that we will cross multiply. 3 into 7, 3 by 5 plus 2 by 7. So after solving, 3 7s are 21 plus 5 2s are 10 upon 7 5 are 35. Now 21 plus 10 will be 31. 31 upon 35. This is our answer. Now next is, here denominator are once again not same, so we will take LCM. 9 by 11 minus 4 by 15. Now cross multiply. So for taking LCM, we just cross multiply the numbers. 9 into 15 will be 135 minus 11 into 4 will be 44. Upon 11 into 15 will be 165. When we multiply 15 with 11, 15 1 the 15, 15 1 the 15. That will be 165. Now 135 minus 44 will be 91 upon 165. Now this is our answer. But if अगर यहाँ पे हमारे कटिंग होती है किसी भी फ्रैक्शन में, then we can write this fraction in a more simpler form also. That's all. Now let us do fifth part. अब हमारे पास तीन fractions हैं.
तो हम इन दोनों को लेंगे क्योंकि ये दोनों जो है वो 5 on the 5, 5 to the 10, तो ये दोनों सेम टेबल पे जा रहे हैं, ये दोनों भी सेम टेबल पे जा रहे हैं, पर हम इन दोनों को कंसीडर कर रहे हैं, ये फर्स्ट टू टर्म्स है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो हमारा आंसर में फ्रैक्शन आएगा उसको इसके साथ कंबाइन करके सॉल्व करेंगे। नाउ 7/10 प्लस 2/5 को जब हम सॉल्व करते हैं तो वी विल टेक एलसीएम अगेन, तो 5 और 10 का 5 1 जा 5, तो ये हमारे फ्रैक्शन बन जाते हैं इसमें 5 to the 10, तो ये हो गया 10, तो 7 ऊपर ऐसे ही रहेगा और 5 to the 10 होता है तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 4। इसमें हम 5 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 2 और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 plus 4 is 11/10 plus 3/2. Now here is 10, 11 plus 5 to the 10, 5, जो 2 को इसके साथ डिवाइड करेंगे, जो हमारा आंसर आया उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 5 the 10, 5 3 the 15, तो हमारा आ गया 15 plus 11 will be 26/10, so this is our answer। Now अब नेक्स्ट हमारे पास है मिक्स फ्रैक्शन, तो विल सॉल्व इट। 2 3 the 6, तो अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 2 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर को एज इट इज। नाउ 2 3 the 6, 6 plus 2 8, सो ये आ गया 8/3 प्लस 3 to the 6 plus 1 7/2। अब हम इसको फिर से एलसीएम लेंगे, 8 to the 16, 7 3 the 21 अपॉन 2 multiplied by 3 6, so 16 plus 21 will be 37/6। so क्योंकि हमारा क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे, तो 37 को 6 के सेलेक्ट करेंगे, 6 6 से 36, तो आंसर 6 है, 6 1 रिमाइंडर है, ऊपर ये डिनोमिनेटर, so this is our answer। now next भी हम इसको सॉल्व करेंगे ऐसे ही, पर यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। now 8 is to 1/2 minus c into 5/8, 8 to the 16 plus 1 17/2 minus 8 3 the 24 plus 5 29/8। now यहाँ पे फिर से हम एलसीएम लेंगे, तो 8 आ जाएगा एलसीएम, 2 4 the 8, 4 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 29 एज इट इज, 17 4 the 68 माइनस 29/8, तो ये हमारा बन गया 18 में से 9 गए 9, 5 में से 2 गए 3/8। अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है तो आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, तो हम 39 को जब 8 के साथ डिवाइड करते हैं, 8 4 the 32, 9 में से 2 गए 7, तो हमारा आंसर आ जाता है 4 is to 7/8। so this is our answer, that's all। now let us do second question। arrange the following in descending order। अब डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स हम पहले बिगर टर्म को लिखेंगे, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर एंड एंड में सबसे स्मॉलर। नाउ वी आर गिवन द 3 टर्म्स। नाउ 2/9, 2/3 एंड 8/21। हमारे पास ये डिनोमिनेटर तीनों डिफरेंट है, सो इन दैट केस वी विल टेक एलसीएम, सो 3 9 एंड 21, ये तीनों 3 के टेबल पे जाते हैं, तो 1 3 3 9, 3 7 21। अब हमारे पास बचा क्या 1 1 एंड 7, तो हमारे 3 into 3 9, 9 7 63, तो हम एक एक करके पिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें 63 बनाना है, तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है इन फैक्टर्स के साथ, 3 3 9, 9 7 63। अब हमने तीनों के डिनोमिनेटर को 63 लिखना है, तो 63 लिखने के लिए हमें इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जितने नंबर के साथ आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया उतने ही नंबर से हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो
तो ये हमारा बन गया 2 7 14 अपॉन 63। नाउ सेकंड फ्रैक्शन इज 2/3। अब हमें इसको 63 बनाने के लिए 21 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 21 3 63। नाउ ऊपर भी 21 के साथ, तो हमारा आंसर आ गया 42 अपॉन 63। नाउ नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 8/21। अब यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे भी हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको 63 बनाने के लिए, तो ऊपर भी 3 के साथ, तो ये हमारा आ गया 24 अपॉन 63। अब हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, दैट मीन्स सबसे बड़ा नंबर। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर के ऊपर फोकस करना है। तो अब तीनों न्यूमरेटर में से सबसे बड़ा नंबर कौन है? 14, 42 और 24 में से 42, तो 42/63। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 24, तो 24/63। नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 14/63, ये सबसे स्मॉलर है। अब 42 बना कहां से है? 2/3 से, दैट मीन्स 2/3 सबसे ग्रेटर है। उसके बाद 24 है, 24 कहां से बना? 8/21 से, 8/21। उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 14/63, वो कहां से बना? 2/9 से। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द डिसेंडिंग ऑर्डर of these fraction. Now let us do next question. अब हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं 5, 7 और 10। हम इनका एलसीएम लेंगे। 5 to the 5, 7 as it is 5 to the 10। तो हमारे फैक्टर बन गए 5 to the 10, 10 into 7 is 70। तो हमने डिनोमिनेटर में 17 बनाना, 70। Now we will solve it one by one. Firstly हमने पिक किया 1/5। अब 5 की जगह पे हमने कितने बनाना? 70। 5 into 2 into 7, that is 70। Now 70 बनाने के लिए हम अगर 70 को 5 के साथ डिवाइड करें ताकि हमें नंबर पता चल जाए मल्टीप्लाई कौन सा करना है। 5 1 the 5, 5 4 the 20, दैट मीन्स हमें 14 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 को। अब जिस नंबर के साथ डिनोमिनेटर में ऊपर भी वही नंबर, तो ये आ गया 14/70। नेक्स्ट इज 3/7। अब हमें पता 7 है, तो 10 into 7 कितना होता है? 70। 7 प्रेजेंट है तो 10 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई, 10 के साथ नीचे, तो ये बन गया 30/70। नेक्स्ट इज 7/10। 10 है तो 70 बनाना, 7 के साथ मल्टीप्लाई, 7 के साथ डिवाइड, तो ये बन गया 49/70। अब क्योंकि तीनों डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो न्यूमरेटर के साथ कंपैरिजन करेंगे, तो हमारे पास पहला 49 बड़ा है, फिर 30, फिर 14, तो लिखिए कैसे? 49/70 इज ग्रेटर देन 30/70 विच इज ग्रेटर देन 14/70। नाउ 49/70 किसका नंबर है? 7/10 का। नाउ दिस इज ग्रेटर देन 3/7, वो किससे ग्रेटर है? 1/5 से। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द डिसेंडिंग ladder ऑफ एनी अरेंजमेंट ऑफ fractions. That's all. Now let us do third question. उन्होंने बोला in a magic square the sum of numbers in each row and in each column and along each diagonal is same. Is this a magic square? तो हम कंसीडर करते हैं ये एक स्क्वायर है, अगर ये सारी कंडीशंस को सॉल्व आउट करता है, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो हम इसको मैजिक स्क्वायर बोल सकते हैं। Now first of all these are considered as the rows and these are columns. Now that is along horizontal these are rows and along vertical these are columns. Now 4/11 plus 9/11 plus 2/11. Let us add it. 4/11 plus 9/11 plus 2/11. अब हम पता है कि डिनोमिनेटर तो सेम है तो हमने जस्ट न्यूमरेटर को ऐड करना है। 9 plus 2 is 11, 11 plus 4 is 15/11। सो इसका जो सम आ जाता है R1 का वो हमारा आ गया 15/11।
अगर हम सेकंड रो को सिमिलरली ऐड करते हैं और थर्ड रो को ऐड करते हैं तो वो कितना बनता है 5 + 3 is 8, क्योंकि सभी का डिनोमिनेटर सेम है तो विल जस्ट फोकस ऑन द न्यूमरेटर पार्ट। नाउ उन सम करने के लिए बोला तो 5 + 3 8, 8 + 7 will be 15, तो here will be also 15/11. Now 8 + 1 9, 9 + 6 will be 15/11. नेक्स्ट इज अगर हम कॉलम वाइज ऐड करते हैं तो समेशन ऑफ C1 विल बी 4 + 3 7, 7 + 8 is 15/11. Now summation of C2 will be 9 + 5 will be 14, 14 + 1 15/11. नेक्स्ट इज C3, C3 का समेशन अगर हम करते हैं तो 7 + 2 is 9, 9 + 6 is 15/11. नाउ हमारे जो रोज और कॉलम्स की कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो चुकी हैं, सभी का सम सेम आ रहा है। नाउ लेट अस चेक वेदर द डायगोनल्स ऑफ बोथ हैव अ सेम सम और डिफरेंट। 4 + 5 हमें पता है कि ये डायगोनल है, तो 4 + 5 9, 9 + 6 is 15, so 15/11 अगेन। तो समेशन ऑफ डायगोनल 1 जो है वो 15/11 आ गया। नाउ लेट अस चेक फॉर डायगोनल D2, तो वो कैसे होएगा ऐसे 2 + 5 7, 7 + 8 is 15, so 15/11. So in this way we check out that all the sums are same, so we consider it as a magic scale. That's all. Now let us do fourth question. A rectangular sheet of paper is 12:1/2 centimeter long and 10:2/3 centimeter wide. That means हमें एक रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ और विड्थ दी हुई है, हमने फाइंड इट्स पेरीमीटर, हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। Now first of all we will draw a rectangular sheet. Now let us consider it as a rectangular sheet of paper. अब हमें उसकी लेंथ और विड्थ दी हुई है, दैट इज 12:1/2 सेंटीमीटर एंड 10:2/3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इट विल बी इन द फ्रैक्शनल फॉर्म 12 × 2 is 24, 24 + 1 25/2 सेंटीमीटर। इन अ सिमिलर वे ये हमारे पास आ गया 10 × 3 is 30, 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 30, 30 + 2 is 34, 10 × 3 is 30, 30 + 2 32/3, तो ये हमारा आ गया 32/3 सेंटीमीटर विड्थ आ गई। नाउ अकॉर्डिंग टू जो हमें गिवन दिया हुआ है पहले हम वो लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट दिस इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर, और जो विड्थ हमें दी हुई है दिस इज 32/3। नाउ पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, दिस इज 2 times L + B। नाउ 2 times L की वैल्यू 25/2 और B is 32/3, तो इन दोनों को हम एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का, तो 25 × 3 will be 75 plus 32 × 2 will be 64/2 × 3 6, 2 के साथ ये कट गया 6, 3 आ गया, तो पेरीमीटर कितना आ गया हमारा 75 + 64 139/3। नाउ क्योंकि हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम पेरीमीटर भी मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे, तो 139/3 का मिक्स फ्रैक्शन कितना आएगा, लेट अस चेक। 139 डिवाइड बाय 3, 3 4 12, 1 6 3 18, रिमाइंडर इज 1, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 46 1/3,
सो दिस इज आवर पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, उसका प्रॉपर सर्कमफ्रेंस कितना होता है। सर्कमफ्रेंस क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 2 लेंथ था, 2 विड्थ है, ये हमारी विड्थ होगी और ये हमारी लेंथ होगी। 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ दैट इज ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। तो हम जस्ट उसमें लेंथ और विड्थ की वैल्यूज पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देंगे। दैट इज मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमने सिंप्लीफाई किया, उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। दैट्स ऑल।